Swami Vivekananda said, by the advent of Sharda Devi, the women power will come up in India, the Shakti has been aroused, and once more great women will take birth in India and will take India to a greater height, and all over the world the women power will have a great mark. Swamiji was the visionary. He could visualize the women power that will be coming in the days to come. And this is what is happening in every field. Indian women, women all over the world, particularly Indian women, are coming forward. When we organize competitions, essay competition, speech competition, quiz competition, we find most of the prizes are taken away by women. Gold medalist, we are going to, every year we give prizes to the gold medalist. 90% of the gold medalists are women. So women are coming forward. In every field women are coming forward. So Swami Vivekananda's prophecy is coming true. Swami Vivekananda said, you are the creator of your own destiny. If you work hard, you can change your destiny. Because if our present has been made by our past, that very thing proves our future can be made by our present efforts. Here is a living example of Swamiji's message of women empowerment, Swamiji's vision about women empowerment, Swamiji's message how you can become the creator of your own destiny, how Swamiji's message is being implemented today and can be implemented in life. Here is a living example of Arunima Sinha, who became the first woman of the world with one leg, an amputated woman in the whole world, to reach Mount Everest on 21st May this year. It is a very interesting story, and I will request her to tell her story in Hindi. Afterwards, I will give the gist of the speech in English, and if anything is left out, very important item, I will also fill up the gap, because I know her from a long time, from last 7 months, and I am in constant touch with her. And when she becomes emotional, she may forget certain items. I will tell those items, but I will, without waiting, making you wait for some more time, I will first request Arunima Sinha to give her speech. Afterwards, video will be shown how she climbed Mount Everest. That video also will be shown, and afterwards I will give the gist of the speech in English. So over to Arunima Sinha. Just a minute. Just to honor you. Now I request Ms. Sweta, one of our delegates, to honor Arunima Sinha. आदरणीय स्वामी अभिरामानंद, स्वामी निखिलेश्वरानंद एंड यहाँ पे उपस्थित आदरणीय सभी स्वामी जी और उपस्थित सभी डेलीगेट्स और सभी मित्रों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे बारे में कुछ पढ़ा होगा, शायद न्यूज़ में, इंटरनेट पे, या फिर न्यूज़ में देखा होगा। आज अपना एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव आप लोगों के बीच में बांटने का मुझे मौका मिला। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे आप लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस और जो भी मैंने अभी तक अचीव किया आप लोगों के बीच में बांटने का मौका मिला। एक बार फिर से मैं स्वामी जी का धन्यवाद बोलूँगी। और हम आप लोग से सिर्फ इतना, जो भी है, मेरे पास कोई भी किताब की बातें नहीं है, जो भी है खुद का अनुभव,
जो भी है सब कुछ। हाँ, जब इसके पहले इसके आज जो अचीव किया है मैंने, उसके पीछे सबका हाथ है उसमें। 2011 में 11 अप्रैल मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, मेरा जॉब इंटरव्यू था। उस दौरान कुछ बदमाशों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एक सोने की चैन पहन रखी थी मैंने, उसको छीनने के लिए सभी ने कंपार्टमेंट में दे दिया, मैंने सिर्फ विरोध किया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उसी समय जब उन्होंने मुझे बाहर फेंका, उसी समय दूसरी ट्रैक से अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ गई और मेरा एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कट गया, और दूसरी पैर की हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। मेरा ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था उस समय भी। मैंने ऐसे करके उठने की कोशिश किया, लेकिन हम उठ नहीं पाए। ये अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। उठने की कोशिश किया ऐसे करके, तो जो मेरा कटा हुआ पैर था वो पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में टकराया। तो मुझे लगा कि हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पे थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था और सूज सहित ऐसे उसमें लटक गया था और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। कई ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें गुजरती गई, करीब 49 ट्रेनें अप डाउन हुई थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। सामान ढोने वाला जिस पे सामान ढोते हैं, उस पे कूली जिस पे सामान रख के लेके जाता है, उस पे रख के वो मुझे लेके गए। और जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था बरेली, वहां की डॉक्टर थी, उन्होंने जब मुझे देखा और तुरंत रिफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे ले गया गया और बेड पे लिटा दिया गया था। आसपास मेरे सारे डॉक्टर खड़े हुए थे। आपस में बातें करने की, हमारे पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हम कैसे इसका इलाज शुरू करें। और उसके बाद कहां से मुझ में हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जीने की ललक तो थी। बेड पे पड़े पड़े मैंने कहा, सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने बर्दाश्त किया, 7 घंटे ट्रैक पे पड़े रहे तब बर्दाश्त किया, अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप काटो, बिना एनेस्थीसिया के मैं बर्दाश्त करूंगी। और उसके बाद मेरी इस बात को सुन के वहां के फार्मासिस्ट मिस्टर बीसी यादव मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने अपना कहा कि अभी कुछ भी हो, चाहे इसकी फैमिली जब भी आएगी देखेंगे, लेकिन अभी बचाना है इसको। पहली बार मैंने ऐसी किसी को जीने की ललक देखी है। और उन्होंने अपना 1 यूनिट ब्लड दिया और बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर जो लगा हुआ था कुछ उसमें फिर से काटा गया। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था, बेड का एंगल होता उसको ऐसे पकड़ के उस पे जब काटा जा रहा था मुझे पता चल रहा था। उसके बाद जब होश में आए तो हम वार्ड में, तो बेहोश हो गए थे, वहां पे वार्ड में थे। ये सब चीजें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आदमी कुछ भी, अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने के प्रति जिद है तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको लक्ष्य के प्रति जाने से। उसके बाद वहां से मुझे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया। ट्रॉमा से फिर मुझे एम्स में एडमिट करीब 4 महीने हम हॉस्पिटल में रहे। 4 महीने के दौरान जब लोग ये सोचते हैं मुझे अपने आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, मैं उस दौरान ये सोच, क्योंकि उस समय जब हॉस्पिटल में थे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी निगेटिव बातें भी आई थी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो टीटीआई तो कूद गई, जो कि आज भी टिकट मेरे पास सेफ है। बहुत सारी निगेटिव बातें आई थी, लेकिन उन निगेटिव बातों को मैंने पॉजिटिव में लिया था। मेरे अंदर एक आग उस हॉस्पिटल में जरूर थे हम,
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और जो जो बातें आ रही थी मेरे सामने, शायद अगर हम उनसे उस बराबर में उस समय अगर बोलते तो कभी मैं जवाब नहीं दे पाती उनकी बातों का। हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया कि मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना था। और कहने और करने में बहुत अंतर होता है। प्लान कर लिया, हॉस्पिटल के बेड पे मेरा आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था, दूसरे पैर में रॉड था, ऑपरेशन हो गया था, लेकिन चल नहीं सकते थे हम। अब सपना देख रहे हैं एवरेस्ट का। कई लोगों से मैंने जब ये बातें बताई कि मुझे माउंटेनिंग करनी है और एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो लोगों ने मुझे पागल समझा, लोगों ने मुझे पागल बोला। गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सबने ये बोला कि अरुणिमा ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे अंदर क्या आग जल रही थी। और उसके बाद प्लान किया हॉस्पिटल। हम सिर्फ मेरे भैया ने, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं माना, सिर्फ मेरे बड़े भैया, उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हाँ अरुणिमा, अगर तुम ये जिद है तुम्हारा तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा जुनून है ये तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन माउंटेनिंग बहुत महंगा गेम है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 30 से 40 लाख रुपए एक आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एक साथ देखा भी नहीं है मैंने खुद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा मैम बछेंद्री पाल से मिले हम। फर्स्ट टाइम जब रेलवे हॉस्पिटल से, एम्स से डिस्चार्ज हुए दिल्ली से, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टेशन पहुंचे और मैंने भैया से कहा कैसे जाएंगे। भैया ने कहा चलेंगे चाहे जैसे चलेंगे। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेन में हैंडीकैप कंपार्टमेंट भी लगता है। बैठ के पूरी रात बहुत रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। पूरी रात रोए। सुबह जब जमशेदपुर पहुंचे, मैम को फोन किया कि मैम मैं जमशेदपुर में हूं। बहुत मुश्किल से, मैम का नंबर भी बहुत ही मुश्किल से मिला था मुझे। उसके बाद मैम को जब फोन किया, मैम ने कहा कहाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था। मैम ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे फोन ऐसे आते रहते हैं कि लोग बोलते हैं मुझे करना है, लेकिन आता कोई नहीं है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हम जब उनसे मिले, उनके ऑफिस गए, मिले, मेरे राइट लेग में पूरे स्टिचेस लगी हुई थी, स्टिचेस भी नहीं कटी थी। आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया था लेकिन एकदम नया था। भैया को पकड़ पकड़ के हम चल रहे थे, बहुत मुश्किल। एक कदम चल पाना मेरे लिए मुश्किल था। और वो लड़की सपना देख रही है एवरेस्ट का। कोई भी सोचेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या मजाक है। मैम ने भी यही बात, मैम ने कहा कि अरुणिमा तुम्हें समझ में आ रहा ना कि तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहा मैम बिल्कुल, मैं पूरे होश हवास में, पूरे समझ से मैं बोल रही हूँ ये बात। उनकी आंखों, जब मेरा पैर देखा, उन्होंने स्टिचेस लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोली कि अरुणिमा तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। और अगर तुम इसी दृढ़ निश्चय से, इसी जुनून के साथ में अगर तुम करोगे, तुम्हारा यही डिटर्मिनेशन रहेगा, तो तुम जरूर क्लाइंब करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने यही बोला कि मैम मुझे बस एक मौका आप दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए जाते, सारे लोग नॉर्मल थे। मेरा एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ में मेरा ऐसा था कि आर्टिफिशियल लिम्ब था। हर कोई बोलता, हर कोई यही बात। मैंने खुद को समझा लिया था कि मैं हैंडीकैप होके भी नहीं हूं, मैं सारे काम कर सकती हूं। लेकिन मुझे दूसरों के लिए समझाना बहुत मुश्किल था। और फर्स्ट टाइम जब हम बेस ट्रेनिंग के लिए गए, बेस कैंप से किसी टॉप के लिए निकलते थे तो हर कोई मुझसे आगे निकल जाता था। हर बार मुझे लगता था कि हम सपना देख रहे हैं एवरेस्ट का और हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इनके। कभी कभी होता था कि 20 से मुझे वापस कर लिया जाता था, कभी कभी ये होता कि टॉप पे 1-2 घंटे बाद पहुंचते थे हम, हर बार। लेकिन
खुद को मोटिवेट करते, ये सोच के कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी, इनसे आगे जाऊंगी। स्वामी जी कहते हैं कि जिसको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास नहीं है वो किसी और चीज पे कैसे विश्वास कर सकता है। मुझे अपनी अंतरात्मा पे विश्वास था कि नहीं, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं कर सकती हूं, और उस चीज को सिर्फ विश्वास करके और आगे बढ़े। जब पहले 5 किलो का वेट उठाना शुरू किया, 10 किलो, धीरे धीरे करके वेट बढ़ाना शुरू किया। वो लोग जो ट्रेनिंग के लिए आते सिर्फ 10 दिन के लिए आते थे, मैं कंटिन्यूअसली वही करती थी। करीब 6-7 महीने 8 महीने बाद इतना अच्छा हम चलने लगे थे कि बेस कैंप से हम टॉप के लिए निकलते और उनसे पहले टॉप पे पहुंचते, जब और बैठ के वहां से देखते थे और वो लोग हमसे ये पूछते कि मैडम आप खाते क्या हो, ये पूछना शुरू किया उन्होंने। तब मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ अभी ठीक है। जब ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल लिम्ब नया था, इतना चलने की वजह से पूरा उसमें से ब्लड निकल, ब्लिस्टर होता, फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन के बाद ब्लड निकलने लगता था। 1-2 बार हम पहले पैर को खोल खोल के देखते कि ये क्या है कि ब्लड निकल रहा है मेरे पैर से, लेकिन उसकी वजह से हम पीछे हो जाते थे। उसी दिन मैंने निश्चय किया आज के बाद ये पैर नहीं खोलेंगे जब तक मेरा काम हो नहीं जाएगा। और लगातार जब तक मैं अपने दिन भर चाहे किसी काम में हूं, मैं तब से लेके आज तक मैंने कभी पैर नहीं निकाला रास्ते में। और वो ब्लिस्टर होता फ्रिक्शन की वजह से, फिर उसमें से ब्लड निकल, मेरा जो सिलिकॉन जेल पहनते उसमें से ब्लड भर जाता था। लगातार फिर भी चलते रहते थे। और जब हमारा टारगेट जो रहता था वहां पे पहुंचते टेंट रहता, तो टेंट में मैम हमसे पूछती कि अरुणिमा कैसे बर्दाश्त करती है। हमने यही कहा कि मैम मेरा सपना एवरेस्ट का है, मैं एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। और बस वो ये उनकी वो भी बोलती कि तू तो मेरी शेरनी है, तू जरूर क्लाइंब करेगी, और गले लगा लेती थी। उनकी बातें एक जादू की तरह मुझे काम करती थी। और लास्ट में जब मेरा करते 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 लास्ट ईयर हमने लेह में 21 लोग थे, 21 लोग एक समिट के लिए गए थे। लेह में एक पीक था, उसमें 21 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने क्लाइंब किया था। 2 शेरपा, ग्रुप लीडर और हम, एक एक करके सभी लोग छटते जा रहे थे। जब सब लोग छट रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये लोग सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद भी छट जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। लेकिन खुद को ये वही कह के मोटिवेट करते थे कि जो मुझ में है वो इनमें नहीं, इसलिए ये नहीं कर सकता, मैं करूंगी। ये सोच सोच के सिर्फ आगे बढ़ते गए। उसको भी क्लाइम किया। एवरेस्ट के लिए जब निकले यहाँ से, लास्ट ईयर जितने लोग थे सबमिट करके एवरेस्ट आए, तो वो लोग हर कोई बोलता कि अरुणिमा हमारे लिए इतना मुश्किल है तो तुम कैसे करोगी। और जब हम शेरपा, जो हमारा शेरपा था एवरेस्ट के लिए जगह, तो जब शेरपा को ये बात पता चला कि अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर है और दूसरे पैर में रॉड है, वो मेरे साथ चलने से ही इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि इसकी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैंने उसको समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ली है, अब चलो। और किसी तरीके से वो तैयार हुआ और आगे जब चलने लगे, प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन के लिए मैंने आइलैंड पीक किया है। अगर शायद आप लोगों में से किसी ने माउंटेन के बारे में अगर पता होगा कुछ, तो पता होगा कि आइलैंड पीक कितना टेक्निकल पीक है। शेरपा ने बोला कि आइलैंड पीक नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैंने आइलैंड पीक को सबमिट किया। उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। डेथ जोन एरिया, एक कुंभू आइस फॉल डेथ जोन एरिया बोलते हैं उसको 6 बार क्लाइंब किया। 3 बार गए और 3 बार वापस आए। 6 बार उसको आने जाने से 6 बार क्रॉस किया। हम कुछ चीजें एवरेस्ट की थोड़ी सी शेयर करेंगे आप लोगों से।
जब हम लास्ट सबमिट के लिए जिस दिन हम निकलना शुरू किए, कैंप 3 से कैंप 4 के लिए रास्ते में येलो बैंड है, उसमें मेरा क्रैम्पोन रॉक में फंस गया और मेरा आर्टिफिशियल पैर ऐसे निकल गया। पीछे से सारे लोग बोल रहे कीप मूविंग कीप मूविंग। मैं कैसे चलती, मेरा तो पैर निकल चुका था। उसके बाद पैर को सही किया, फिर आगे बढ़ना शुरू किया। साउथ कोल से जब ऊपर 20 मई 2013 को जब हमने लास्ट सबमिट के लिए जिस दिन निकले, आंखों के सामने इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी, अच्छे अच्छे माउंटेन है, कितना बड़ा हौसला ना हो किसी का जब आंखों सामने कोई किसी को मरते देखता है, अच्छे अच्छे के हौसले टूट जाते हैं। वाकई में अपनी आंखों से जब मैंने देखा कि लोग आंखों के सामने मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन। साउथ कोल में एक लड़की, कोरियन लड़की, पैर रगड़ रगड़ के, कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि अगर हम अपना ऑक्सीजन निकाल के देते हैं तो हमारी मौत तय है। अगर वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और एक जब हम ऊपर जा रहे थे लास्ट सबमिट के दिन, तो एक बांग्लादेशी थे, उनका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा था और मुंह से आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी। स्नोफॉल हो रहा था और हमको जाना है आगे, और उनकी मतलब लास्ट मोमेंट उनका था। ये देखने के बाद वहां डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता है। मैंने पहली बार देखा था, और पहले से मरी हुई कई डेड बॉडीज, करीब 10-15 डेड बॉडीज पहले से पड़ी हैं, उनके बीच से निकलना है। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। करीब 30 से 40 सेकेंड हम वहां खड़े हुए, और खड़े होके सोच रहे थे हम क्या करें, नीचे जाएं या ऊपर जाएं। लेकिन मेरा टारगेट था सबमिट। मैंने वहां खड़े होकर सिर्फ इतना बोला कि अगर इन सारे लोगों में से एवरेस्ट सबमिट कर लिया सबने, तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया तो मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। ये सोच के अपने आप वो आत्मविश्वास जो अपने आप जो पैदा हो रहा था, और ये भी बोला कि आप सब लोग अगर मेरी मिल के मदद करोगे तो मैं सबमिट जरूर एवरेस्ट कर लूंगी। जब मैं अपने फ्रेंड्स को ये बातें बताती हूँ, सभी लोग हंसते हैं, कहते हैं कि अरुणिमा कैसे तू उनसे बात कर रही थी। लेकिन जो उस समय की सिचुएशन होती है, तो खैर उसके बाद जब हम आगे के लिए निकलते हैं, करीब हिलेरी स्टेप के साउथ सबमिट, हिलेरी स्टेप के थोड़ा नीचे साउथ सबमिट एरिया है। हमारे ग्रुप से जितने लोग थे सभी लोग छोड़ के मुझे जा चुके थे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। सभी लोग जा चुके थे और मुझे वापस आते वक्त वहां पे मिले साउथ सबमिट के करीब। हर किसी ने बोला अरुणिमा चलो वापस चलो, इसलिए सभी लोग, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन जो था वो खत्म होने लगा था। एक ही ऑक्सीजन, वो भी खत्म होने लगा, उसमें रेड लाइट जलने लगी थी। एजेंसी के लीडर ने वॉकी टॉकी से कहा कि अरुणिमा वापस आ जाओ, वहां तक भी तुम्हारा एवरेस्ट सबमिट है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वहां तक भी। जो मेरे साथ शेरपा था उसने भी बोला कि अरुणिमा वापस आ जाओ। मेरे सामने सबमिट था और कोई मुझसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, मैंने बोला कि सर क्या बात कर रहे हैं, यहां पे पहुंच के मैं वापस हो जाऊं, कभी नहीं। और शेरपा उसी पे बात पे गुस्सा, कह रहे हैं कि नहीं जाओगी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। हमने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब चलो आगे। बोले मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट में मुझे फैसला लेना पड़ा। मैंने कहा कि सर ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है उसमें कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा लूं और ये रिकॉर्ड में इंडिया का नाम ला पाऊं। मैं जाऊंगी, ये सोच के कि वाकई में आज हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर ये बातें कर रहे हैं तो वो चीज़, वो फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप कहीं ऐसी सिचुएशन में होंगे, मुझे दिखाई दे रहा था कि और देश के लोग पहुंच के अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, खुश थे। मुझे लग रहा था कि
मेरे अंदर अपने आप से एनर्जी जनरेट हो रही थी। ये मन कर रहा था कितनी देर जोर से दौड़ूं कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन स्टीप दौड़ नहीं सकते थे हम। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी ये तिरंगा लगा दूं वहां पे। खैर, ये सोच के फिर हम आगे बढ़े, लास्ट समिट पे पहुंचे। जब हम नी के बल, उस खुशी को कैसे मैं शब्दों में बयां करूं कि क्या खुशी थी मेरे लिए। बस ये मन कर रहा था कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं उन लोग कि आज मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं एक तो लड़की दूसरी विकलांग, वो कभी नहीं कुछ कर सकती। उनका भरम मैं तोड़ना चाहती थी वहां से चिल्ला के कि, और सबसे पहले मैंने धन्यवाद भी उन्हीं लोगों को बोला जो लोग मुझे मेरी आलोचना कर रहे थे, जो लोग मेरे प्रति निगेटिव बातें बोल रहे थे। क्योंकि अगर वो निगेटिव बातें नहीं बोलते तो मेरे अंदर वो आग ही नहीं पैदा होती। हम तो हर किसी से यही चीज कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम आप करने जाओगे तो बहुत सारे आपको पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे आपके साथ भी मिलेंगे, साथ जो आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप आगे बढ़ो। जो प्रोत्साहन देते हैं वो तो हमेशा आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं से वो भी आपके साथ होते हैं जो आपको निगेटिव बातें बोलते हैं। फर्क इतना है कि आप किस वे में लेते हो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं निगेटिव है, वो मेरे प्रति निगेटिव बोल रहा है, तब तो निगेटिव में ही जाओगे। लेकिन ये सोचो कि आज मुझे ऐसा बोला, इस चैलेंज में लो उसको कि आज इसने मुझे बोला, मैं इसको कल करके दिखाऊंगा। विश्वास रखो आप, मैंने सिर्फ यही किया था। मुझे विश्वास था उन लोगों पे कि जो लोग मुझे आलोचना कर रहे हैं मैं इनको करके दिखाऊंगी। उस समय मुझे, यहां तक कि मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी हूं, यहां उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि क्योंकि मेरे सारे सर्टिफिकेट्स खो गए थे, उससे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि अरुणिमा है भी कि नहीं। मुझे बाद में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख के मेरे घर पे, मैं अभी तो ऊपर से नीचे ही उतर रही थी, मेरे घर पे मोटे मोटे अक्षरों में, पूरा बड़े बड़े लेटर में मेरे घर में पीएम सीएम एवरीथिंग हर जगह से आने लगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं उनको बोल के जवाब देती कभी नहीं दे पाती। चुप रह के मैंने जवाब दिया कि मैं प्लेयर थी, हूं और हमेशा रहूंगी। और उसके बाद जब हम टॉप से जब नीचे आने लगते हैं, मेरा ऑक्सीजन मैंने बताया था आप लोग से खत्म हो रहा था। एक वीडियो भी मैंने 2 से 3 मिनट का एक वीडियो भी बनाया मैंने वहां पे, क्योंकि मैंने भी ये मान लिया था कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा, मैं भी नहीं बचूंगी। इसलिए आज जो हम यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, मैंने 3 मिनट में वहीं पे बोल दिया। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का है, वहीं पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे बोल दिया था। शेरपा से बोला कि अगर मैं जिंदा नहीं बचती हूं तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना। लेकिन उसी दौरान एक, मैंने बताया था कि अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है एवरेस्ट, ऐसा है। एक ब्रिटिश क्लाइंबर थे, करीब साउथ समिट के करीब, उन्होंने देखा कि अभी भी एवरेस्ट दूर है। उनके पास 2 ऑक्सीजन था, उन्होंने एक को वहीं फेंका और एक को लिया और वापस नीचे जाने लगे वो। तब मेरे शेरपा ने देखा कि एक ऑक्सीजन वहां मिल गया। वो फट से मुझे बोले कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो कि देखो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। और वो दौड़ के गए और लेके आए, मुझे लगा दिया उन्होंने, ऑक्सीजन मुझे लगाया। हम आप लोग जो लोग हिंदी समझ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ, और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो लक और भाग्य को मानते हैं? बहुत सारे हैं। खैर, आप लोग की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी मानता है अपना अपना है। लेकिन मैं न लक को मानती हूँ न भाग्य को, किसी को भी नहीं मानती। मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है
तो आप कभी भी नहीं जीत सकते हो। बहाने, सिर्फ बहाने, बहुत सारे बहाने आपको मिलेंगे कि मैं ये कारण से नहीं जा पाया, मैं ये कारण से नहीं। मेरे पास थे, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, शेरपा ने बोला, एजेंसी के लीडर ने बोला, मेरे ग्रुप के सभी लोग मुझे छोड़ के जा चुके थे, लेकिन मेरा मेन टारगेट था एवरेस्ट, कि मुझे पाना है, सबमिट करना, कुछ भी हो। अब बिना, नो पेन नो गेन, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता है। रिस्क लेने की ताकत रखो अपने अंदर, कोई भी नहीं रोक पाएगा। शेरपा ने भी ये बात मुझे बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो। मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल से मिला था ऑक्सीजन, क्योंकि वहां मैं पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद मतलब कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी ना चाहते हुए भी देने पे मजबूर हो जाए। वही किया था मैंने। मैं 7 घंटे ट्रैक पे पड़ी रही, करीब 7 घंटे लगभग। 49 ट्रेनें अप डाउन हो गई थी, तब नहीं मरे। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था कि मैं अभी नहीं मरने वाली। जैसे हमारे रूल्स होते हैं, उसके भी रूल्स है। मेरी मौत नहीं है तो वो कैसे मुझे ले जा सकता है? तो जो मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है, उसको हम क्यों ना पाएं? और वही चीज इतना मजबूर कर दो उसको कि वो, जैसे उन्होंने मुझे, मैं जैसा इमेजिन करती हूँ कि उन्होंने यही बोला होगा कि अरुणिमा ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले और यहां से जिंदा वापस जा, क्योंकि जब मेरी मौत ही नहीं तो वो कैसे ले जा सकता है? खैर, ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और फिर वापस आना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा मौतें आते वक्त होती हैं, क्योंकि आदमी रिलैक्स हो जाता है कि अभी तो मैंने सबमिट कर लिया है, अब क्या है। सभी लोग, सभी के नॉर्मल पैर थे, 2 पैर ठीक ठाक थे, सभी लोग जल्दी जल्दी भाग के नीचे जा रहे थे। 10:55 पे मैंने, 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। करीब 10 मिनट हम वहां रहे। फिर वापस 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करता है, सबमिट पे जाता है, तो उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं। तो मुझे वापस आते वक्त टाइम हो गया था। स्नोफॉल, हवा तेज, इतनी तेज हवा कि आदमी को उठा के बाहर फेंक दे, उठा के फेंक दे, इतनी तेज हवा होती है। हम नीचे आ रहे हैं, स्टंप मेरा कट चुका था, ब्लड निकल रहा था उससे। सिलिकॉन जेल, ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर की, जब हम चल रहे थे तो ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था। सिलिकॉन जेल स्किन को छोड़ दे रहा था बार बार। मेरा पैर स्लिप कर गया, आर्टिफिशियल पैर स्लिप कर गया। उसका जो जॉइंट होता है अलग। अब मैं क्या करूं? इतना -60 डिग्री टेम्परेचर, यहां सबसे मेरे ब्लड निकल रहा था, ये सब ब्लू पड़ चुका था, ऐसे इतना ऐसे कड़ा हो गया था, ऐसे मोड़ने पे मोड़ नहीं रहा था, इतना पेनफुल ये। फिर भी चलना है। अगर ना, 2 चीजें थी, बहुत ही मुश्किल से मुझे ऑक्सीजन मिला था। ज्यादा देर तक रुकते हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो रहा, और देर तक रुकते हैं तो शेरपा भी लास्ट मूवमेंट पे छोड़ के चला जाता है। वो मेरे सामने सिर्फ 2 चीजें थी, या तो हम हार मान जाते, हार मान के ये कह देते कि नहीं ठीक है, अभी मौत मेरी आएगी, मैं मर जाऊंगी, या फिर मैं चलती रहती। कुछ आंखों से आंसू निकलने लगा, कुछ देर रोए और उसके बाद करीब 10 सेकेंड रोए, और रोने के बाद फिर आंसू को पोंछा। पोंछने के बाद यही कहा, ठीक है तेरे पास जितनी शक्ति है तू लगा ले, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। रोप को एक हाथ से पकड़ा, जो रोप थी ये मोड़ नहीं रहा था हाथ, फिर भी जबरदस्ती हाथ को पकड़ के, क्योंकि जिंदा जाना है। रोप को पकड़ा, और रोप को पकड़ के आर्टिफिशियल पैर, अगर हम स्टेप लेते तो मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाता, स्टेप लेने पे आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाता। एक हाथ से आर्टिफिशियल पैर को ऐसे पकड़ा और पैर को घसीटते हुए चलना शुरू किया नीचे, और ब्लड रिस रहा था। उसके बाद रॉकी एरिया था, रॉकी एरिया में गए, फिर नीचे आए, काफी नीचे रॉकी एरिया था, उसमें एक होल टाइप का था, उसमें घुसे।
जल्दी जल्दी पैर को खोला और फिर से ब्लड व्लड को सुखाया, और सुखाने के बाद जब शेरपा ने देखा कि इतना ब्लड निकल रहा, तब उन्होंने कहा कि अरुणिमा अब मुझे समझ में आया कि तू चल क्यों नहीं पा रही है। अभी कुछ भी हो, मरना होगा तो दोनों साथ में मरेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने ये बोला कि सर ऐसी कोई नौबत नहीं आने देंगे हम मरने की, ये तो ठीक है निकल रहा ब्लड, लेकिन हम चलेंगे। उसके बाद पैर को रुमाल से ब्लड को सुखाया, फिर से पहना, तब नीचे चलना शुरू किया। कैंप 4 टू समिट टू कैंप 4 मुझे टोटल 28 घंटे लगातार लगा था चलने में, और रात को 8 बजे वापस हम साउथ कोल में पहुंचे थे। आज सभी लोग, जितने लोग हमारे ग्रुप के थे, सभी लोग आके नीचे बोल दिए थे कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास है तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम जैसे कभी भी एक चीज और हम बोलेंगे आप लोग से, हमेशा बड़ा सपना देखो, हमेशा बड़ा, और उसको हमेशा याद रखो, उस सपने को हमेशा याद रखो। एक होते हैं ना कि जैसे एक हम सो जाते हैं और हमेशा रोज नए नए सपने देखते हैं सोते हुए कि हम आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब हर कोई देखता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर भूल जाता है उसको। लेकिन उसको हमेशा याद रखिए। और हाँ, सोती हुई आंखों से सपना कभी मत देखिए, जागती आंखों से, जागती आंखों से आप सपना देखिए, और वो सपना जब आपको सोने ना दे तब समझिएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और हर किसी के जीवन में एक एवरेस्ट है, हर किसी के। मैंने तो वो एवरेस्ट क्लाइम किया, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए हर आदमी रोज एवरेस्ट चढ़ रहा है। दुखी है, बहुत दुखी है वो, और ये सोचता है कि मैं आज इतना दुखी हूं। आप ये समझ लेना, जब आपके जीवन में बहुत दुख आ जाए चरम सीमा पे, और आपके मुंह से जब निकले कि आह, मतलब आह निकलना शुरू हो जाए, तब आप समझ लेना कि आपका सुंदर सवेरा ऊपर वाला लिख चुका है। बस उस रात को पार करो, आपके आगे सुंदर सवेरा है। और जो उस रात को पार कर जाता है वो तो सुंदर सवेरा में पहुंच जाता है, जो नहीं पार करता वो वहीं रहता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरुणिमा तुम्हारे अंदर विल पावर है, बहुत विल पावर है। क्या हम आप लोग से पूछते हैं, क्या ऊपर वाले ने मुझे अलग बनाया है? एक जैसा बनाया है, हम सबको एक जैसा बनाया है। विल पावर आपके अंदर भी है, हर किसी के अंदर विल पावर होती है। फर्क इतना है कि जो उस विल पावर को यूज करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं यूज करता वो वहीं होता है। यूज करो, लड़ो और अपने लक्ष्य को पाओ। यही कहेंगे हम आप लोगों से आगे। और हर बार एक लक्ष्य बनाओ। जैसे मेरा अभी तक का एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है, किया 2 साल के अंदर 4 महीने। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों का कहना है कि 3 से 4 साल लग जाता है सिर्फ आर्टिफिशियल लिम्ब पे सीखने को। मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन में चला था आर्टिफिशियल पैर पे, क्योंकि मुझे अंदर में जो आग थी, और उसको जलाए रखो। मैंने जलाया रखा। पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल भी बोले, यहाँ पे आप लोगों में से भी हो सकता है कि कैसे, लेकिन मैं उसको भी पॉजिटिव में लेती हूँ कि अगर आप लोग मेरे प्रति पागल समझ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आपके लक्ष्य के प्रति लोग आपको पागल बोलने लगे, तब समझना कि आपका लक्ष्य आपके बहुत ही नजदीक है। और 2 साल के अंदर मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया। और ये नहीं कि एक ही लक्ष्य को पाके आप बैठ जाइए, हर बार नया लक्ष्य बनाइए। आगे भी मैंने भी लक्ष्य बनाया है, एक 7 कॉन्टिनेंटल्स के, 7 महाद्वीप के जो पीक हैं, वर्ल्ड पीक के, उसको क्लाइम करने का। दूसरा, मुझे जितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए,
ऐसे बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी, एक गरीब बच्चों के लिए और खास करके फिजिकल चैलेंजेस बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का प्लान किया है। और उसका लैंड अभी तक मैंने इंटरनेशनल मानक के अनुसार हमने उसका लैंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। वो एकेडमी 16 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट है। शायद आप लोग भी सोचे कि जेब में मेरे 16 रुपए नहीं है और सपना 16 करोड़ का, लेकिन देखो बड़ा, जैसे हर कोई मुझे उसके लिए भी बोलता था एवरेस्ट के लिए कि पैर है ही नहीं और सपना देख रहे एवरेस्ट का, जिसमें पैर का ही मेन काम है। अरे सोचो तो बड़ा, जमीन मेन चीज जमीन होती है। स्पोर्ट्स के किसी भी चीज के लिए जमीन होती है। उसका जमीन हमने पूरी क्लियर कर लिया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि वो भी बनेगी। और उन बच्चों को, मेरा सपना है, मेरा खुद का सपना था कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, मैं नहीं खेल पाई, लेकिन मैं और बच्चों के जरिए अपना सपना पूरा करना चाहती हूं। उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूं। टैलेंट हर बच्चे में होता है, बस उसको निखारने की देरी है। उसको निखारना चाहते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम, कि वो आए वहां पे। क्योंकि बहुत अरुणिमा है, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक ही अरुणिमा बहुत हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म लाना है और आगे लेके जाना है। मैं ये इस तरीके से सोच रही हूँ कि आज क्या है इंडिया में कि हम 16-17 साल की उम्र पे सोचना शुरू करते हैं कि हम ये गेम खेलेंगे, डिसाइड करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि 3-4 साल 5 साल की उम्र से बच्चों को लें और तब उनको डिसाइड, उनको तब से शुरू कर दें उनको सिखाना। और 15-16 साल की उम्र तक सोचने की बजाय वो मेडल लाना शुरू कर दें। ये सोच रख के हम उसको एकेडमी को बनाना चाहते हैं। आप सबके सहयोग से मुझे विश्वास, क्योंकि मेरे एवरेस्ट में भी बहुत सहयोग है सबका, और उसमें भी आप सबका सहयोग मुझे चाहिए और बनेगा। एवरेस्ट में हम आप लोग, मेरा अकेला खुद का नहीं है ये। अगर हम आप लोग को स्टार्टिंग का बताएं, मेरे पास आर्टिफिशियल लिम्ब के खरीद लिया था, करीब 60 से 70 हजार रुपए मुझे कम पड़ रहे थे एवरेस्ट जाने के लिए, और बिना आर्टिफिशियल लिम्ब के कभी हो ही नहीं पाता। तब हमने बड़ौदा के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से इस बात, जब इनको पता चला, हमने ये बात कही, आपको पता चला, हम तो जो मेरे पास पुराना पैर था हम उसी पे जा रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं अरुणिमा वो रिस्क है, कुछ भी हो सकता है उस पे। तब आपने मुझे वो 60 से 70 हजार रुपए मुझे लोगों से मांग के आपने मुझे दिया, और तब जाके हम आर्टिफिशियल पैर खरीद पाए थे। नहीं तो मैं कभी आर्टिफिशियल पैर भी नहीं खरीद पाई थी। तो ये सबका सहयोग से आज ये मेरा खुद का अचीवमेंट नहीं, पूरे देश का अचीवमेंट है, आप सबका अचीवमेंट है। और लास्ट में हम एक 4 लाइन की पंक्ति बोलेंगे। हिंदी मुझे पता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों की हिंदी नहीं समझ में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसे हालात में होने के बाद मैं आज यहाँ Yes.
Yes, good. Dear friends, just now you heard the thrilling story of Arunima Sinha from her own mouth, how she faced the struggle, how she reached Mount Everest with only one leg and created the world record. Unfortunately, the DVD of 1 minute that was shown, you did not get the full sound. In that she says that I have done it, I have reached it, and I am very happy, because she was not sure that she will be alive. So she gave the message that I am very happy to come to Mount Everest and achieve my goal. That is the message she gave from Mount Everest. There is something else which has not been shown because it is taking time to find out. But anyway, I will tell the story about it. Almost all of you, many of you are knowing Hindi. So, and the time is also not there. So what I will do is, I will only give the gist of the whole thing, and then I will tell the story, a different story from my own perspective, which she forgot. Afterwards she will again tell, because she has forgotten many points. She gave a very nice speech at Vadodara when we had an international conference on 10th and 11th of August. She had come, Dr. Kalam came and felicitated her. I kept my promise because she kept her promise. What were the promises, I will tell you. But she was felicitated by Dr. Kalam, and there she gave her whole story in a very beautiful manner. We have created DVD along with my English translation. That DVD is available in the book sale I have brought from Vadodara. On the back side, you will get the photograph about which I am going to talk to you, which is the most important point which she has forgotten, and she will tell about it. So just now what she told, that she was already a national champion, volleyball player and football player. On 11th of April 2011, she was traveling by Padmavati Express from Lucknow to Delhi for giving the examination. At that time, some dacoits came. They started snatching the things from other passengers. All the passengers gave their things. They wanted that she should give her golden chain she was wearing. But that time her age was 23 years. 2011, her age was 23 years. Look at her courage. There were 4 people. She was all alone. All the other passengers, they have given away the things. But she said, I am not going to give you the chain. And she started fighting single-handed with those 4 dacoits. You can imagine the fire inside her. And then the dacoits thought that she is resisting so much. Looking at her courage, other people will also get courage. And if all the passengers become courageous, then we will be thrown out of the train. So what did they do? They took her up, all the 4 of them, and just threw her out from the running train. From another side, another running train was coming. She collided with that train. She got some injury in the head, which is still there on her head. And then her one leg was completely cut off. And then she was, the blood was coming out. She was bleeding profusely. She was crying. Whole night she cried, but nobody came to her help. And 49 trains went through her head, because as soon as she was trying to get up, she found that her one leg is cut, so she cannot come out of the tracks. Immediately she finds another train coming, and if she lifts her head, she will be cut. So she took her head down so that the train can pass over her. 49 trains passed over her head. You can imagine, whole night, and still she survived, keeping both the hands like this on the track and lying down in that posture and crying. In the morning, she was taken to nearby hospital, from there to Bareilly hospital,
and it was already settled that she is not going to survive. That time, her brother, who is sitting here, Om Prakash Sinha, please get up. Om Prakash Sinha. He is a great worshipper of Hanumanji. So he told Hanumanji, if I am not going to see my sister alive, I am not going to have any connection with you. He told Hanumanji, gave a warning. And Hanumanji had to come to rescue. And when he went to the hospital, Arunima was having her eyes open, not closed. And so he thought that Hanumanji has listened to his prayer, and then you listen to her, how courageous she is. In that hospital there was no anesthesia, and they were discussing without anesthesia how can we ampute, and already there was gangrene going on. If we do not cut the leg, she is going to die. If she cut the leg, operation, there is no anesthesia. There is no time to carry her to another hospital. She told on deathbed, at that time she is bleeding, she said, you see doctors, I have already faced so much of pain whole night. 49 trains have gone over my head, so much of blood has gone, and my leg has been cut, and I was having so much of pain. You are going to give me pain for relieving my pain, so you please do the operation without anesthesia. And the doctors, they carried the operation, and the doctor was so much impressed with her desire of living and with her courage that doctor himself donated his blood. Somehow she was survived. She was taken to AIIMS hospital. She was there for 2 months. She survived. And on deathbed, she made up her mind that now I can't play volleyball, I can't play football with one leg, but I am not going to accept my defeat. I am going to show to the dacoits that I have not accepted the defeat, even if they have thrown me out from the train, but they cannot throw me out from my courage. And so, with this one leg, I'll go to Mount Everest. She decided. Her mom also scolded her. What? You are talking about going to Mount Everest? You cannot walk even one step. But her brother, Om Prakash ji, he gave her whole support. He was in the military. He took premature retirement only to be with her side throughout 24 hours a day. He is with her from last two years, and he is constantly supporting her. And because of her support, because of the support that she has received, she got a little more courage and she went further. Then only deciding the goal is not enough. You have to work for it. So when she was in the hospital, she contacted Bachendri Pal, the first woman of India to go to Mount Everest in 1986, as you know. And she was the director of Tata Foundation in Jamshedpur, in Tata Nagar. So now what to do? She has decided, but for achieving that goal, we have to work. So I must do the course of mountaineering, and I must get, and it is a very costly affair. If you want to go to Mount Everest, it requires 1 crore rupee, because you have to take the help of the Nepal agency. So, and she is from a very poor family or a middle class family, she can't afford that. So she contacted Bachendri Pal, somehow she got the phone number of Bachendri Pal, and from the hospital, directly she went to Tata Nagar. At that time, no reservation in the train because they have decided urgently. So she had to go to the compartment which is meant for handicapped people. There is one more compartment. And Arunima said that it is for the first time she wept for the whole night, because to think that I am a handicapped person, that was not acceptable to her. But she had to go to the handicapped compartment. She wept for the whole night, reached Tata Nagar, and when Bachendri Pal saw her condition, she said, Arunima, you cannot make even one step, and you are thinking of Mount Everest. How can I recommend your case for this sponsoring 1 crore rupees? Arunima said, Madam, please give me one chance. I will see to it
that you will not lose your prestige. When she said like this, then Bachendri Pal was very happy. She told her, Arunima, at this condition, when you cannot walk, you are dreaming of going to Mount Everest. So already you have reached Mount Everest mentally. It's only for showing to others that you have to go. But already you have conquered Mount Everest mentally. That is what Bachendri Pal told her. Then Tata Foundation gave 1 crore rupees. The Nepal agency returned 30 lakhs of rupees, that because she is going with one leg, and with that 30 lakhs rupees they sponsored one more person, and she went on going for many mountaineering courses because she has to prepare herself. And just now you listened how in the earlier period when she used to go for mountaineering, all other people reached the summit earlier and she was fallen behind because she cannot walk even one step. Gradually, she made such a manner that all those expert mountaineers will be left behind and she will reach the top earlier, all of them, and they would ask, Madam, aap khati kya hai? Madam, what do you eat? You are reaching earlier with only one leg. That is the change that came across. 2 years she worked very hard. It is not only thinking about the goal. It is not only dreaming. It is not only thinking about the goal. It is to find out the ways and means of reaching that goal. It is not only that also. You have to work hard. She worked hard. She worked hard for 2 years. Gradually 5,000 feet, 10,000 feet. And then she reached within 2 years 20,000 feet. 23rd January, Subhash Chandra Bose's birthday. Coincidentally, on that day, Arunima came to Vadodara for campaigning for a mountaineering course. And so those people who had arranged, our devotees had arranged that course, they told that you come to our program, Arunima Sinha has come. You know, we don't have TV. And I did not have any knowledge about her. I had not heard her name also because we don't have TV, and so I was not keeping. I said, okay, some Arunima has come, okay. So they told, why don't you come to our program and that will give encouragement to Arunima. I said, you see, I am very busy, but what you do, you tell Arunima to come here to Baroda, our ashrama. Here, this is the memorial where Swami Vivekananda himself stayed. Let her meditate in Swamiji's room. She will get power there, and then I will present her some books. So better let her come. So Arunima came on 23rd January. She meditated in the room in which Swami Vivekananda stayed in Baroda. After that she came to me. She said, I felt so nice sitting and meditating in the room of Swamiji. I cannot tell you, I got a lot of energy. Then I gave her the book. Till that time she had heard the name of Swami Vivekananda, but she had not read any book. So I gave her a lot of books on Swami Vivekananda. I gave one book of Swami Vivekananda. I told her, always keep this book. And whenever you are in low spirit, whenever you lose enthusiasm, just read one passage from the book of Swami Vivekananda. Keep always with you. And I also gave one photograph of Sri Ramakrishna, Sarada Devi and Swami Vivekananda, small photograph. 3 big photographs I gave, one big photograph of Swamiji also I gave, but one small photograph I gave of all the 3. I told, this you keep always in your pocket. Whenever you feel you are in danger, just look at this photograph, pray to them, they will protect you. And she is such a simple girl. I have been telling this to so many youths, read the books of Swamiji, Vivekananda, and you will get power. So many people I have reading. I am telling them to read the books. I present my gift books to them, so many of them. Only once she met on 23rd January, only once I made a request to her, read this book, that will give you power. Only once I gave that photograph, pray to this photograph, and they will protect you. See her faith in herself. See her faith in Swami Vivekananda. See her faith in the book of Swami Vivekananda. She just listened to me, and then I said, she gave promise to me that I will take this photograph with me and this small book with me up to Mount Everest, and this small photograph I'll keep in the Mount Everest, and Sri Ramakrishna, Sarada Devi and Swami Vivekananda will be there on Mount Everest even after my return. She gave me that promise and she took the photograph. Afterwards, this is on 23rd January, then she was constantly in touch with me. Then one day she telephoned that Swamiji, Tata Foundation has given me 70 lakhs.
1 crore, out of which 30 crores they have taken back, 70 lakhs. But when I told them that my leg has become little loose and so I want a new leg, they are telling that we don't have a provision, we have already given you 1 leg. Then I told Arunima, you should not take any risk, because it is with the help of the leg, artificial leg, though it is with the help of artificial leg that you are going to reach Mount Everest. There should not be any risk in that matter. Don't take any risk. Don't take any chance about that. And I will see to it that for the sake of money, if you can't reach Mount Everest, I will see to it that it will not be for the lack of funds. So I started begging money. Within 1 day, I collected 71,000 rupees, which was the cost of the leg. Immediately, second day, I transferred to her account. And then after getting that leg, she telephoned me, Swamiji, I am feeling so relieved and I am feeling so confident. I have got a new leg, and with that, I'll conquer Mount Everest. And she conquered Mount Everest with that new leg. On 21st May this year, and you heard the story, how many hours, 28 hours of hard work. She was constantly in touch with me till she reached the base camp. After base camp, there is no mobile is working. Only Nepal government, Nepal agency with walkie-talkie can have contact with her. But the Nepal agency was giving message to her brother, and her brother Om Prakash ji used to relate to me. So it is Om Prakash ji for the first time, I listened from her for the first time that already Arunima has reached the summit on 21st May, and on 19th of May, she had talked to me from the base camp, and she had told, yes, Swamiji, I am carrying the photograph. I thought it is the photograph of Swami Vivekananda she has taken. So in the Times of India, it was printed that Arunima Sinha has kept the photograph of Swami Vivekananda on Mount Everest. But on 22nd, when I talked to her, she said, no, Swamiji, I did not keep the photograph of Swami Vivekananda. I kept the photograph of Ramakrishna, Sarada Devi, Swami Vivekananda, all the three, there in Mount Everest. And just now you heard, when she was only 600 feet away, she was given the telegraphic message, you must come back, there is no oxygen in your cylinder. And that was a very critical moment, and everybody was forcing her to come back. Even the Sherpa was also telling her to come back. At that time, she saw on the summit, only she is able to see the summit 600 feet away. All the flags are there, Indian flag is not there. Then you see the spirit of patriotism that she has got. She said, what? मेरे देश का तिरंगा नहीं है? मेरे देश का झंडा नहीं है? Okay. Then she decided, the photograph, she has given promise to me. So I'll keep this photograph there on Mount Everest, and I'll put the flag there, Indian flag, and afterwards I'll die. Because everybody told you can't come back because there is no oxygen. She took that risk, and mind you, they have not shown you the photograph. I'll show you the photograph. At that time, when she is not having any oxygen, next moment she is going to die. At that moment, she dug some ice from the Mount Everest. She put the photograph of Ramakrishna, Sarada Devi, Swami Vivekananda, and she worshipped that photograph. And as soon as she completed the worship, immediately one oxygen cylinder was given by Sherpa, that one Englishman had taken 2 cylinders. He was finding it very heavy to carry 2. So he has left 1. And when she completed the worship, the oxygen cylinder came to her. And that is how she survived. Then she came to a long distance. For only 1,000 feet, she was carried by a helicopter because she had become unconscious. Again from the base camp, she was told that she will be brought by helicopter. She said, no, I will go by walking. All the way from the base camp, again she went to Nepal walking, and from there to India. This is the story in brief about Arunima Sinha. There are so many other things which I could not tell, but what I would request you, there is a DVD that we have prepared, available in book sales section, where she has given the details, all the details that she said here, plus more details she has given. My translation is also there. But what is the message? One thing is that her simplicity. Only once I told, read the book of Swami Vivekananda every day. Whenever you are in distress, read one page, one paragraph of Swami Vivekananda. She is carrying that book always with her, that book of Swami Vivekananda. I told her to see the photograph whenever she is in distress. She carried that photograph to Mount Everest.
she kept her promise and kept the photograph there in Mount Everest for good. It is already there. Thakur Ma Swamiji, Ramakrishna Sardari Swami photograph in Mount Everest. She kept her promise, and I had promised her, when you come back, we will give you honor. We will honor you in the International Youth Conference where Dr. Kalam is coming. She kept her promise. I also kept my promise. On 10th August, she came to Baroda. She was felicitated by Dr. Kalam, and then she gave that inspiring speech. So the message is how Swami Vivekananda is working in various ways. Swami Vivekananda book, even one sentence can give you so much of power. Impossible can become possible if you have got determination. Swami Vivekananda said, I will drink the ocean. I will crumble the mountains into dust at my willpower. That is the willpower. Whatever the message of Swami Vivekananda, Arunima Sinha is the demonstration of how this message can be carried out. You are the creator of your own destiny. Hard work, courage, facing the difficulties. Swami Vivekananda said, the greater the struggle one undergoes, the greater the person who comes out of it. She underwent extraordinary struggle, and so she became extraordinary person. Now she has become a celebrity. Hollywood is making a film on her. I don't know. Now she is going to become more and more popular. Afterwards, we will not be able to get her also, perhaps. She has become a celebrity. Everywhere she is in demand. Next month she will be with me in Rajmandri and other places in Lucknow. Lucknow is her place. So Lucknow, there is a youth convention, she will be with me. There also she will be narrating her story. But she is becoming popular. But what is the message? Message is that Swami Vivekananda message is very relevant for the modern youth. The message of hard work, message of determination, message of willpower. Swami Vivekananda said, face the brutes, face the difficulties, and the difficulties will disappear. That is the message. Don't listen to anybody's criticism. Don't listen to anybody. You go on your own way. Afterwards they will worship you. She has shown. So many criticize her, but she has shown through her life. So Arunima's life is a glaring example of how message of Swami Vivekananda can be carried out in our life, number one. Number two, she has achieved all these things because of her own determination, her own courage, her own self-confidence, plus the help from, external help from her brother, from Tata Foundation, and from so many sources. And thirdly, I must say, divine grace. Because when she had gone there, I knew that it's going to be very difficult for her to come back. So many devotees in Baroda and so many other places were praying for her that she comes back, and she has come back. Lord has listened to our prayers. Sri Ramakrishna, Sharda Devi, Swami Vivekananda have listened to our prayers, and she is back. And so I will request all of you, please keep a small photograph of Swami Vivekananda with you, if along with Ramakrishna, Sharda Devi. That is one thing. And also one small book of Swami Vivekananda always with you. Whenever you are in difficulty, whenever you are in distress, whenever you are in low spirit, just read one page, one passage from Swami Vivekananda. And remember, if Arunima Sinha with one leg can reach Mount Everest, with two legs, where can you reach? With one leg she has reached Mount Everest, with two legs, where can you reach? But I told her, Mount Everest she was there. Now what is the next step? There is nothing greater than Mount Everest. They say sky is the limit. I said sky is not the limit. Normally they say sky is the limit. I said no, I don't say sky is the limit. I say you have to go beyond sky. You have to go beyond time, beyond space, beyond causation. That is absolute. You have to reach the divinity. That is the ultimate goal of life. Reach infinite knowledge, infinite existence, infinite bliss. And I am sure with her determination, she will reach that goal also one day. And in between, she has told a future vision. Two visions are there. About one vision she talked, she wants to start an academy, a sports academy for handicapped people or differently abled people. And second, she wants to start Ramakrishna Ashram in her village, because she has been inspired by the books of Swami Vivekananda and the photograph. So she wants to start a Ramakrishna Ashram, private ashram in her own village, as well as near the village, in the village where the academy is there. Two ashramas she wants to start. And
her website is www.arunimasinha.com. arunimasinha.com. You go to that website, you will get many more details about her, and you will get the email ID. arunima19@arunimasinha.com is also the email. You give an email to her. If you want to help her financially or otherwise, just send her an email. She will give the bank account. As she told me, she gave me the bank account and her SMS, she gave the SMS bank account. Next day, I transferred 71,000 rupees, and that with that she purchased the leg. For Sports Academy also, I am trying to help her. I am trying to get in touch with other organizations. You can also help her because it is for a noble cause that she is doing future work. So we want, she has already done extraordinary achievement she has done. But Swami Vivekananda said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. And the goal is the ultimate is infinite knowledge, infinite bliss. You have to go forward, forward, forward. So I pray to Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Swami Vivekananda to bless her so that she comes forward and doesn't forget that it is for the good of humanity that Swami Vivekananda is blessing her for the sake of good of many, for the happiness of many. We wish all the best to Arunima Sinha. Thank you very much. एक्चुअली ठाकुर माँ और भगवान परमहंस जी का और स्वामी विवेकानंद जी का फोटोज़ भी लेके गए और वहाँ पे रखे. जब जिस कदम पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, पैर बहुत दुख रहा था, तो बार बार निकाल से ऊपर वाली फ्लैप से हम फोटो देख रहे थे. मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन सिर्फ आपने कहा था कि अरुणिमा विश्वास करना, सब कुछ सही होगा. वाकई में अब फोटो है, मैं दिखाती हूँ. ये फोटोग्राफ्स मैं अपने पास रख के लेके गई और फिर वहाँ पे रखा. पूजा भी किया क्योंकि मुझे बोला भी वहाँ पे कि मुझे अब आपके भरोसे ही मैं जाऊंगी यहाँ से, और मुझे पूरा विश्वास कि आप ही मुझे जिंदा नीचे लेके जाएंगे. ये मॉर्निंग समय था, सूरज नीचे से निकल रहा था और चंद्रमा ऊपर दिख रहा था. ये डेड बॉडीज़ थी वहाँ की, कई डेड बॉडीज़ ऐसे पड़ी हुई थी. कैनेडियन एक लड़की थी, उसके ही फ्लैग में फिर उसको लपेट के वहीं छोड़ दिया गया. इतने सारे लोग हिलेरी स्टेप पे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं. ये जब हम लोग के साथ में नीचे आ रहे थे और वाटर बोतल खोला उन्होंने पानी पीने के लिए, एक हाथ से पानी गिराया, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था, बैठे रह गए, फिनिश. लग रहा है कि जिंदा है लेकिन ख़त्म हो मर चुके हैं. ये इनका हेडलाइट, पानी, सब कुछ वैसे ही, और लेकिन मर चुके हैं. ये डेड बॉडीज़ अगर कोई लेके आता है तो ऐसे शेरपा लोग ऐसे बांध के रस्सी से इस तरीके से लेके आते हैं.